لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ جس طرح اللہ برکت والا، عظمت والا، اسی طرح اس کا مہینہ بھی برکت والا، عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے، بلکہ اس کی رحمت، اس کی مہربانیاں، اس کی کرم نوازیاں بے انتہا ہیں کہ بندہ اس کی حد تلاش نہیں کر سکتا، بندہ اس کی حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں برکتیں، رحمتیں، عنایتیں، مغفرتیں، بخششیں ایسی رکھی ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ایک مومن بندے کو اتنا کچھ عطا کرتا ہوگا۔ یعنی بندہ غور کرتا جائے تو اس کی پیشانی شکر سے سجدے میں جھک جائے کہ اللہ رمضان میں تو اتنا عطا کرتا ہے، چاہے وہ روزے کو لے لیجئے، چاہے نماز کو لے لیجئے، چاہے صدقات و خیرات کو لے لیجئے، زکوٰۃ کو لے لیجئے، چاہے دیگر عبادات کو لے لیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کو لیجئے، ذکر و اذکار کو لیجئے، درود پاک کو لیجئے، یعنی جو بھی نیک کام اس مہینے میں کیجئے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بندے کی سوچ سے، بندے کی فکر سے، بندے کی سوچ و فکر کے زاویوں سے ماوراء عطا فرماتا ہے۔ اور یہی نہیں پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، جیسے ہم سوچیں کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ کھانا نہ کھائے تو زندہ نہیں رہ سکتا، جیسے شوگر کا مریض، اس کو ہر 2-4 گھنٹے میں کھانا چاہیے، ہر 2-4 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی چیز چاہیے، اس کے لیے روزہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور روزہ رکھنا نہایت اس کے لیے مضر بھی ہوتا ہے کہ صاحب کہیں کچھ زیادہ نہ ہو جائے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اگر اللہ پر توکل کر کے ایسا بندہ روزہ رکھے گا، حالانکہ اس کو کھانے کی حاجت ہے، حالانکہ اس کو پینے کی حاجت ہے، پتھری والے کو پانی زیادہ پینا ہوتا ہے، اگر پانی نہ پیے تو درد ہونے لگتا ہے، ہر 1-2 گھنٹے میں پانی پینے کی حاجت ہوتی ہے، لیکن یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے پانی چھوڑ دے اور روزہ رکھ لے تو اس کی کیسی برکت، کیسی عنایتیں اللہ تعالیٰ کی شامل حال رہتی ہیں۔ اس کو اس روایت سے سنیے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت حسن اور امام حسین کے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی، جیسے پان گٹکا بعض کھاتے ہیں، بعض سگریٹ پیتے ہیں، بعض بیڑی پیتے ہیں، بڑی طلب ہوتی ہے صاحب میں تو روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، کیونکہ مجھے سگریٹ پینے کی لت لگی ہوئی ہے، اگر نہ ملے تو دقت ہو جائے گی، بیڑی نہ ملے تو دقت ہو جائے گی، گٹکا نہ ملے تو دقت ہو جائے گی۔ لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ روایت دیکھیں
کہ جس سے کھانے یا پینے سے روک دیا، روزے جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا، ایسے کھانے پینے کی چیز سے جس کی اسے خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ گٹکا نہیں، یہ سگریٹ نہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا کہ کھانے والی چیز چھوڑی ہے تو جنت کے پھل کھلائے گا، اور جس نے پینے والی چیزیں چھوڑی ہیں تو اللہ تعالیٰ جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ کتنی برکت ہے! یعنی بندہ سوچتا ہے یار میں یہ کام کروں گا تو اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ آپ احادیث پڑھ کے دیکھیے، قرآن پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ بیڑی، سگریٹ، گٹکا وغیرہ ایسی چیزیں جو آج کی ایجادات ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ 1400 سال پہلے یہ چیزیں رہی ہوں گی اور ان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہمارا دین تو قیامت تک کے لیے ہے نا، ہمارا قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ زمانہ بدلتے رہیں گے، چیزیں بدلتی رہیں گی، لوگ بدلتے رہیں گے، لیکن قرآن نہیں بدلے گا، اسلام نہیں بدلے گا، ایمان نہیں بدلے گا، رب کا فرمان نہیں بدلے گا، رسول اللہ کا فرمان نہیں بدلے گا۔ بلکہ زمانہ کیسا بھی ہو، لوگ کیسے بھی ہوں، جب قرآن و حدیث کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ قرآن ہمارے لیے ہی نازل ہوا تھا، حدیث ہمارے ہی لیے ہے، اسلام تو اس زمانے کا دین ہے، اس زمانے کا مذہب ہے۔ آپ دیکھیں دوسرے دین کو دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو 1400 200 یا 2000 سال پہلے کا دین ہے، اب کے لیے دین نہیں ہے، ماڈرن زندگی گزارنے والوں کے لیے دین نہیں ہے۔ لیکن آپ اسلام کو دیکھیں، اسلام 1400 سال پہلے والوں کا بھی دین تھا، 1400 سال بعد والوں کا دین ہے، اور 1400 سال بعد جو لوگ آئیں گے ان کا بھی دین ہوگا۔ جب بھی وہ دیکھیں گے کہ یار یہ دین ہے اور ہماری حالت یہ ہے، ہماری صورت یہ ہے، لیکن جب اسلام کو دیکھیں گے تو وہ بھی اش کر اٹھیں گے کہ یار قرآن تو آج کا بھی دین ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے، بندوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا نازل کردہ دین ہے۔ تو جب اور زمانوں کو، بندوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جان نہیں رہا؟ یقیناً جان رہا ہے کہ میرے بندے قیامت تک جو پیدا ہوں گے وہ کس ذہن کے ہوں گے، کس فکر کے مالک ہوں گے، کیا کریں گے، کتنا یہ ایڈوانس لے کے چلیں گے اور کتنا ان فیوچر سوچ کر چلیں گے، اور کیا کیا ترقیاں کریں گے سائنس کے اعتبار سے، چاہے وہ جس اعتبار سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں اعلان کر دیا تھا کہ لوگ جائیں گے، آسمانوں کے کناروں تک جائیں گے اور دوسرے گروہوں میں جائیں گے، اور جانے والے مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے، اس کا بھی بیان قرآن نے کیا ہے۔ لیکن پہلے کے لوگ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ لیکن جب سائنس والوں نے چاند پر گئے اور کہا کہ بھائی قرآن میں ہے چاند پہ جانے کا ثبوت، اور جب علماء اہل سنت نے کھوج کیا، قرآن کو پڑھا، تو یقیناً چاند پہ جانے کا کیا، ہر گرہ پہ جانے کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رحمان میں کہ جاؤ، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت قوت ہے تو نکل جاؤ آسمانوں کے کناروں میں، جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی قدرت کو پاؤ گے۔ تو جو چاند پہ گئے تو انہیں بھی، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اللہ کی قدرتیں ان کو دیکھنے کو ملی۔ چاند پہ جائیں، منگل گرہ پہ جائیں، بدھ گرہ پہ جائیں، کسی بھی گرہ پہ جائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کو یقیناً حاصل ہوگی۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ 1400 سال پہلے قرآن میں ذکر ہے۔ اچھا کون جائے گا؟ پہلے مسلمان جائے گا یا کافر جائے گا؟ اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہاں پہنچ گئے ہو تو کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ تو اللہ ایمان کی دعوت انہیں دے رہا ہے، تو دعوت کس کو دی جاتی ہے؟ مسلمان کو نہیں، غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے نا۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ جانے والے کافر ہوں گے، اور یقیناً کافر ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہمارا دین، ہمارا اسلام ایسا ہے کہ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں بندہ بیان کرتا رہے اور سنتا رہے تو اشش کر اٹھے کہ یار ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے بعض اسلامی بھائی جو ماڈرن ہو چکے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم اسلام کے قانون قاعدوں کو مانیں گے تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہم تو زمانے
ज़माने से पीछे रह जाएंगे और ज़माना हमें लात मार देगा, ये करेगा वो करेगा, और इस तरह आएँ बाएँ शाएँ की बातें करके इस्लाम के कानून, इस्लाम के कवानीन को फॉलो नहीं करते, मानते नहीं हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हमारे लिए यकीनन खसारा है। मेरे जहन में चंद वाक़यात हैं, मैं उनको आपको सुनाता हूँ। आप देखिए कि हमारा मुसलमान किधर जा रहा है। अगर आज ये देखें कि अगर किसी के अंदर ये चेक करें कि इसके अंदर ईमान बाकी है कि नहीं है, कोई ऐसी मशीन बन जाए, कोई ऐसा औजार बन जाए कि भाई जिस तरह हम खून चेकअप करते हैं या उसकी बीपी चेक करते हैं कि मशीन लगा देते हैं, चेक हो जाता है भाई कितनी बीपी है, इसी तरह अगर ईमान को चेक करने वाली मशीन मिले और हमारे हाथ में, हमारे जिस्म में लगाई जाए ना, तो लेवल बहुत कम आएगा। किसी के तो आएगा ही नहीं, और किसी के आएगा तो प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाई बहुत कम आएगा। हालांकि ईमान का लेवल ऐसा होना चाहिए कि ईमान होगा या कुफ्र होगा, दोनों में से एक चीज़ ही होगी, दोनों चीज़ जमा नहीं होती। या तो अल्लाह की मोहब्बत होगी या तो दुनिया की मोहब्बत होगी। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मुझसे ऐसी मोहब्बत करो कि ऐसी मोहब्बत तुम्हें ना अपने वालिदैन से हो, ना अपने बाल बच्चों से हो, और ना अपने माल से हो। आज देखें मुसलमानों की हालत क्या है। अगर बताया जाए कि हमारे नबी की सुन्नत ये चीज़ है, शादियों में देख लें, सुन्नत बताया जाए कि भाई ढोल बजाना, ये डीजे बजाना, गाने बजाना, ये सुन्नत नहीं है, ये तो हराम है, हमारे नबी ने मना फरमाया है। तो बंदा क्या करता है, अरे यार ज़िंदगी में एक मरतबा तो बच्चे की शादी आई है, तुम इससे भी मना कर रहे हो। तो उसको सुन्नत बताई गई, नबी का फरमान बताया गया, नबी का इश्क बताया गया, लेकिन वो ठुकरा कर दुनिया की जानिब आ जाता है। यार ये नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, इतनी डिशें नहीं पकवाऊँगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, उधर रसूलुल्लाह क्या कहेंगे ये फ़िक्र नहीं है, लोग क्या कहेंगे इसकी फ़िक्र है। अब प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, रसूलुल्लाह ने कहा था कि सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करो, और मोहब्बत करने वाला उनके फरमान को मानने वाला होता है। अब यहाँ पर देखें जो शादियाँ इस तरह करते हैं, क्या वो आशिक रसूल हैं? और है नहीं तो सरकार ने फरमाया वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसके नज़दीक मैं उसके माँ से, उसके बाप से, उसकी औलाद से, उसके माल से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। प्यारे इस्लाम भाइयों, सोचने की बात है। यकीनन ये ज़िंदगी गुजर जानी है। आजकल आप देखें, पहले कहा करते थे कि 60 साल के बाद मौत आएगी, लेकिन आज के एतबार से देखा जाए तो 50 क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है। हमारे F1 में देखें, एक घर में एक साल के अंदर 4 इंतकाल हुए हैं। माँ का हुआ, बाप का हुआ, छोटे भाई का हुआ, बड़े भाई का हो गया, और छोटे और बड़े भाई के दरमियान शायद 1 या 2 महीने का फ़र्क है। अब कोई मर्द नहीं, सिर्फ ख़वातीन रह गई। प्यारे इस्लाम भाइयों, ये सब वाक़यात हमारे इबरत के लिए हैं, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, कभी भी मौत आ सकती है। और अब तो ऐसा होता है कि अटैक पड़ता है, बस बंदा ख़त्म हो जाता है। तो अब तो 50 पार करना भी मुश्किल है। तो सिर्फ ये 50 साल के लिए हमने, यार लोग क्या कहेंगे, नमाजी बन जाऊंगा, दाढ़ी रख लूँगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा, लोग नौकरी नहीं देंगे। ये बताइए, राज़िक अल्लाह है या लोग हैं? जब अल्लाह राज़िक है, हमारा ईमान है, रिस्क अल्लाह ताला देता है, तो ये दाढ़ी रख लेंगे तो क्या रिस्क बंद हो जाएगा? दाढ़ी रखना पसंद अल्लाह फरमाता है, और वही रिस्क देने वाला है, तो वो रिस्क देगा ना। हम क्यों टेंशन में है, साहब ये तो मेरा गैर मुस्लिमों से राब्ता है, गैर मुस्लिमों से कारोबार है, मैं दाढ़ी रख लूँगा तो मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। प्यारे इस्लाम भाइयों, क्या मालूम नहीं है कि बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि जो दाढ़ी पर उस्तरा चलाता है तो वो अपने जिस्म पर उस्तरा नहीं चलाता, गोया कि वो सरकार के दिल पर उस्तरा चलाता है। अब आप देखें, एक आशिक रसूल अपने महबूब के दिल पर उस्तरा चला सकता है? एक कांटा भी नहीं चुभो सकता। और यहाँ हम कर रहे होते हैं, बाज़ इस्लाम भाई रमज़ान में रख लेते हैं। भाई रमज़ान में रख लोगे तो क्या गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे? तुम्हारा इरादा तो है कि जो ही रमज़ान का चांद ख़त्म होगा, ईद का नज़र आएगा, बस तुरंत पहले शेविंग करवाऊँगा, दुकान में पहला नंबर मेरा ही होगा। तो ये इसलिए हुआ कि रमज़ान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, इसलिए आपका जहन बन गया, साहब दाढ़ी रखूँगा, आप नहीं शेव करवाऊँगा। लेकिन जब जो ही रमज़ान का चांद गुज़रता है, ईद का चांद नज़र आता है, शयातीन खोल दिए जाते हैं, तो वो गुनाह बंदे से करवाने लगते हैं। प्यारे इस्लाम भाइयों, ऐसी हमारे मुसलमानों की हालत हो गई है कि बंदा सुने ना तो खून के आंसू रोए। जी हाँ, खून के आंसू रोए। हमें फ़िक्र नहीं है ना, हम देख नहीं रहे हैं, हम इस्लाम के बारे में सोच नहीं रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि साहब मेरा पेट भरा है तो सारों का पेट भरा है।
अब आप रोज़ा रखे हैं, भूख लगी हो तो फिर ऐसा लगता है यार भूख भी कोई चीज़ होती है, बताओ। तो दूसरे की भूख सामने नज़र आती है, दूसरे गरीब लोगों का एहसास होता है यार गरीब किस तरह होते होंगे। आज हमारे लॉकडाउन ने बहुत चीज़ें हमें सिखाई हैं। जो करोड़पति थे, अमीरपति थे, बेहतरीन होटलों में जाते थे तो 10-10 हज़ार रुपया खर्च कर देते थे सिर्फ शाम के खाने में या दोपहर के खाने में। जब लॉकडाउन हुआ, उनका कारोबार बंद हुआ और जब एक एक पैसे के मोहताज हो गए तो अब पता चल रहा है यार 10 हज़ार में बंदा, गरीब बंदा कैसे घर चला लेता है। ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन अब आगे सामने आ गई तो कह रहा हूँ प्यारे इस्लामी भाइयों कि अल्लाह ताला ने हमें इतना भी ज़हन नहीं दिया। हम तो 25 हज़ार कमाए, 30 हज़ार कमाए, तब भी रोते रहते हैं साहब पूरा नहीं पड़ता, मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, तावीज़ दे दीजिए। लेकिन कभी हमने ये सोचा यार हमारा इमाम कितना कमाता है, उसके क्या अखराजात है, क्या उसके बाल बच्चे नहीं हैं। महंगाई ने आपकी कमर तोड़ी है तो क्या इमाम साहब की कमर नहीं तोड़ी। इमाम साहब को लोग फ्री सामान दे देते हैं या किसी आलिम साहब को फ्री सामान दे देते हैं। ये सोचने की बात है। हालांकि इमाम साहब अगर कह दें कि मेरी तनख्वाह 2000 बढ़ा दो, 1000 बढ़ा दो, तो चिल्लाने लगते हैं साहब अभी तो बढ़ाया था। भाई अभी बढ़ाया था तो 1 साल तो हो गया, 1 साल के बाद महंगाई भी तो कितनी हो गई। तो हम भी खाना खाते हैं, मौलवी भी खाना खाता है, आप भी खाते हैं, इनके भी बच्चे हैं, थोड़ा जहन दें। इसलिए किसी इस्लामी भाई ने कहा था कि अगर हर इस्लामी भाई, और मैंने भी जहन दिया था कि हर जुमा 500 रुपया आप मुतय्यन कर लें तो 1 महीने में 2000 हो गए ना। हाँ, हम अपनी अहलिया को देते हैं, बच्चों को देते हैं, घर के लिए देते हैं, उसमें सवाब मिलता है नहीं मिलता नियत पर है। लेकिन हम मस्जिद के लिए 500 रुपया यानी माहाना 2000 रुपये देंगे तो हमें कितना सवाब मिलेगा। तो चलो हम 2000 भी नहीं, आप महीने में 500 रुपया दीजिए। अगर 100 इस्लामी भाई ऐसे हो गए और नमाज़ पढ़ने वाले जुमा में जो आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 100 से 100 गिनती ना हो, 100 पहुंच जाती है। सब कमाने वाले भी हैं, अच्छे भी हैं, ये नहीं कि सब जो है भिखारी हों। 500 रुपया महीने में किसके लिए मुश्किल होगा। अगर आप 100 रुपये भी देंगे तो 400 रुपये तो ये हो गए, 100 रुपया और मिला दीजिए 500। अगर 100 लोग, चलो 100 लोग नहीं 50 लोग 500 रुपये दिए तो कितने हज़ार हो गए, 25 हज़ार हो गए ना। अब 25 हज़ार में से 15 या 20 हज़ार इमाम साहब को दे दिया गया, 5 हज़ार लाइट वाइट का ये हो गया मेंटेनेंस। देखिए मस्जिद कितनी अच्छे से चलेगी, कोई दिक्कत होगी। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि साहब ये क्या हो रहा है, निज़ाम क्या है, बहुत अच्छे से चलेगा। और ना इमाम साहब और ना कोई मुतवल्ली ना कोई कारकुनान आपके पास जाएंगे साहब चंदा दो, भाई बेहतरीन से दिन का काम चल रहा है। तो प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाई सोचने की बात है। तो हमारी हालत ये हो गई है कि अभी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नया वाक़या है अतरौली का। वहाँ पर एक मज़ार है अमरूद वाले बाबा की, और मशहूर है कि जिसके बच्चे ना होते हों तो उस मज़ार के अमरूद के दरख्त का अमरूद लाकर मर्द भी खा ले औरत भी खा ले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बेटा हो जाता है। और कई लोगों ने इसको खाया भी। तो इसको बताया था नौशाद भाई ने हमारे, तो नौशाद भाई ने कई लोगों को दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ बेटे पैदा हुए। तो अगर किसी का ऐसा मसला हो तो राब्ता करें या तरौली जाकर वहाँ से ये अमरूद हासिल करें, अल्लाह की रहमत शामिल हाल हुई तो बच्चा होगा। तो वहाँ एक मुजावर है, मुजावर जो मज़ारों में रहता है, तो उसका 12 साल का लड़का था और 2 बच्चियाँ जवान हैं। तो एक बच्ची गैर मुस्लिम के साथ भग गई, गैर मुस्लिम के साथ भग गई। अब देखो मुजावर का हाल ये है तो हमारे मॉडर्न इस्लामी भाइयों का क्या होगा। एक उसकी बड़ी लड़की गैर मुस्लिम के साथ भग गई। वो 12 साल का लड़का अपनी माँ से कहता है, अभी 1 महीने भी नहीं हुए इस वाक़े को, माँ से कहता है कि माँ क्या ऐसा ही होगा कि मेरी बहन गैर मुस्लिम के साथ भगेगी। तो माँ भी देखो कैसी कह रही है कि तो क्या हुआ, एक गई है, ये जो दूसरी है छोटी वाली ये भी जाएगी गैर मुस्लिमों के साथ। अब वो 12 साल का लड़का, उसको कैसी जोश ईमानी गैरत ईमानी अल्लाह ने नसीब की थी। उसने कहा अच्छा ऐसा है। तो माँ ने कहा हाँ ऐसा ही, छोटी वाली भी गैर मुस्लिम के साथ जाएगी। अब इसको बर्दाश्त ना हुआ कि मेरी बहन मुसलमान होकर गैर मुस्लिमों के साथ भागेगी। इसने क्या किया, रात के वक्त उसी मज़ार के सामने बाग है, अमरूद का बाग है, उसी बाग में फांसी लगा के
मर गया। अब सुबह उसका बाप जब मज़ार पे गया तो देखा कि लाश लटकी हुई है। लोगों को बुलाया कि देखो देखो कोई बागीचे में लगता है फांसी लगा के मर गया है। अब इसको मालूम नहीं है कि मेरा ही बच्चा है। लोगों से कहा कि पुलिस को बुलाओ। पुलिस आई। पुलिस वाले जब उस लाश के पास गए तो ये भी पीछे पीछे गया कि देखूं कौन है। तो जब चेहरा देखा तो इसकी चीखें निकल गईं कि ये तो मेरा लखते जिगर है, मेरा बेटा है। फिर बात की तहकीक हुई कैसे क्या है तो ये सामने आया। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, देखें हमारे मुसलमान की हालत क्या है। आज जो अपने बच्चियों को ये बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि हम सोचते हैं कि हमारी लड़की डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। प्यारे इस्लाम भाइयों, औरतों की ये चीज़ें नहीं हैं। औरतें घर ही के लायक होती हैं। हमारे इस्लाम ने जो पढ़ने का जहन दिया है बस वही हमारे लिए काफ़ी है। हमारी बच्चियां, जवान बच्चियां स्कूल में कॉलेज में जाती हैं और ऐसे भी मामला सुनने में आए हैं कि बच्ची फ़ोन करती है, अब्बू जान मुझे आके ले जाओ, स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो मुसलमान बाप क्या कहता है, बेटी बॉयफ्रेंड के साथ आ जाओ। और बॉयफ्रेंड कौन, ये काफिर। तो जब ऐसे स्कूलों में, ऐसे कॉलेजों में हम तालीम दिलवाएंगे अपनी बच्चियों को, चलो बच्चों को, लड़कों को दिलवाओ तो समझ में आता है, लेकिन लड़कियां, और लड़कियां भी ऐसी कि मुसलमानों के छोड़ के गैर मुस्लिमों के साथ दोस्तियां कर रही हैं और फिर ऐसे मामलात होते हैं। और उनकी एक पूरी तंजीम बनी है कि मुसलमानों की लड़कियों को ऐसे करना है। और ऐसे आप भी सुने होंगे कि ये लोग भगा के ले जाते हैं और फिर इसको दूसरे मुल्क में फ़रोख्त भी कर देते हैं और फिर गलत इस्तेमाल करते हैं। प्यारे इस्लाम भाई, हम कब होश के नाखून लेंगे। ये न सोचे कि हमारी बच्ची महफूज है। नहीं साहब, स्कूल की पढ़ने वाली, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची महफूज नहीं है। और आला हज़रत फरमाते हैं ये तो नाजुक शीशियाँ हैं, और नाजुक शीशियाँ कांच ये थोड़े से झटके में टूट जाती हैं। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, हिफाजत करने की भी हाजत है। लेकिन अब ऐसी बातें बताई जाए तो लोग कहते हैं जो मॉडर्न जहन के हैं, साहब तुम तो पुरानी बातें करते हो, क्या तालीम ना दिलवाई जाए। साहब तालीम वो दिलवाइए जो कब्र में काम आएगी, आखिरत में काम आएगी। कुरान पढ़वाइए, आलिमा बनवाइए, कौन रोका है। और अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाना भी है तो आप सपोर्ट कीजिए। ऐसे हम स्कूल कॉलेज मुसलमानों के खुद हों जिसमें सिर्फ बच्ची पढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इस पर पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर चुकी है कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में इदारे कायम करने जा रहे हैं। और ईद बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉलेज भी कोटा में शुरू हो जाएगा। उसमें डॉक्टर की पढ़ाई, इंजीनियर की पढ़ाई और जितने दुनियावी शोबे जात की पढ़ाई है वो सब होगी। लेकिन उसमें क्या होगा, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग होगा। तो आपसे अर्ज़ है कि दावत इस्लामी का साथ दें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकर खुशी होगी कि दावत इस्लामी ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसे ऐसे विज़न बनाए हैं। 2050 अभी चल रहा है, 2023, 2050 तक का अपना पूरा हदफ बनाए हैं। उनकी अगर मैं झलकियाँ आपको बताऊँ ना तो आप कहेंगे यार ये बातें तो हमने सोचा ही नहीं। आप देखें मदरसों का क्या हाल है। लॉकडाउन हुआ, मदरसे 8000 से ज़्यादा मदरसे बंद हुए हैं और बाज़ लोग पीछे भी पड़े हैं कि मदरसे बंद हों। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ऐसा मामला लेकर आ रही है कि 5 साल के अंदर मदरसे बंद कर देगी। यानी दूसरे सोच रहे हैं मदरसे बंद करने के लिए, दावत इस्लामी उनसे पहले ही मदरसा बंद कर देगी। तो मदरसा बंद कर देगी तो हाफिज़ कुरान कैसे पैदा होंगे, आलिम दीन कैसे पैदा होंगे। उसका दूसरा हमने निज़ाम निकाला है, और ऐसा निज़ाम निकाला है कि वो स्कूल सिस्टम के एतबार से होगा। वो बंदा हाफिज़ भी होगा, दुनियावी तालीम का जानने वाला भी होगा, आलिम भी होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2050 तक अगर मेरी उम्र या मेरी ज़िंदगी सलामत रही या आपकी ज़िंदगी सलामत रही तो जहन में रख लीजिए इंशाल्लाह 2050 में इंशाल्लाह दावत इस्लामी वो काम करके दिखाएगी कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, यार ये दावत इस्लामी है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी को सपोर्ट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अपना ये फैज़ान मदीना जो चलता है इसका माहाना खर्चा 1-2 लाख रुपए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका माहाना खर्चा 7 लाख रुपया है। आप सोच रहे होंगे 7 लाख में क्या करते हैं। आप आके देखें खाने का निज़ाम कैसा है, रहने सहने का निज़ाम कैसा है, तालीम का निज़ाम कैसा है। आगरा में कोई ऐसा मदरसा नहीं है जिसमें 200 प्लस बच्चे हों। अल्हम्दुलिल्लाह इमामत कोर्स भी करवाया जाता है। तो क्या ये दावत इस्लामी फैज़ान मदीना को दूसरे मुल्कों से डोनेशन आता है? बाज़ इस्लामी भाई कहते भी हैं, एक को तरगीब दिलाए कि साहब इतना खर्चा है आप दीजिए, तो उसने कहा यार आप लोगों का चंदा तो बाहर से आता है, आप लोग तो मोटी पार्टी हो।
तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मोटी पार्टी नहीं है। दावत इस्लामी को किसी मुल्क से पैसा लेने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये कानूनन भी मामलात हैं इसके, इसलिए दूसरे मुल्कों से पैसा नहीं आता, ना शुरू से आया ना अभी आता है। और ये भी नहीं है कि साहब बड़ी बड़ी पार्टी हैं तो हमें दे रही हैं। आप देखें अगर पैसा आ रहा है तो काम भी कितना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 200 से ज़्यादा जामियात हैं, यानी आलिम कोर्स करवाने वाले, और 1000 से ज़्यादा हिफ्ज़ और नाजरा करवाने वाले मदरसे हैं। इनका पूरा खर्च सैलरी जो है वो 2 करोड़ रुपया माहाना है, सिर्फ सैलरी। अभी खाना नहीं जोड़ा, रेंट नहीं जोड़ा, बाज़ इदारे रेंट पर हैं, किराए पर हैं। अगर ये सब जोड़ा जाए, दावत इस्लामी का पूरा इंडिया, दावत इस्लामी इंडिया का पूरा सालाना खर्चा ये अरबों में पहुंचता है, 1 अरब प्लस है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये 1 अरब प्लस कौन देगा? ये हम और आप कोशिश करेंगे तब ना होगा। आप देखें 7 लाख ये है, तो 7 लाख ये चंदा कहाँ से आता है? आप ही से लिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने इस अहमद रज़ा मस्जिद के आसपास से किया था, तो कम व बेश 1.5 लाख के करीब हुआ था। और एक इस्लामी भाई है, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने अच्छी खासी रकम दी थी। लेकिन आप लोगों के पास जाते हैं तो फिर आप आए बाएँ शाये करते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाई, आप दीजिए, आप देखें आपका एक एक पैसा रायगा नहीं जाता। बाज़ मदारिस में होता है कमीशन बंदी होती है कि साहब आप इतना करेंगे तो इतनी कमीशन आपको मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में 1 रुपया कमीशन नहीं है। अगर मैं 1 करोड़ कर लूँ तब भी मुझे 1 रुपये नहीं मिलेगा, 1 रुपये ना भी करूँ तब भी मुझे 1 रुपये नहीं मिलेगा। तो आपका इदारा है, आपका जामिया है, आपकी तहरीक है, आप इसकी मदद करें सदका से, ज़कात से। अगले जुम्मे में इंशाल्लाह ज़कात के मौजू पर बयान करूँगा कि ज़कात है क्या, ज़कात ना देने के नुकसानात क्या हैं। जी हाँ, नुकसानात भी हैं, तो आप दें। और ये ना देखें साहब मैं 5000 2000 दूँ, नहीं साहब, काम बड़ा है, आप 10,000 दें, 20,000 दें, जितना दिया है उससे ज़्यादा दें। एक बात मैं आपको बता दूँ, आप कोई कारोबार करते हैं या मकान लेते हैं या गाड़ी लेते हैं तो लोन लेते हैं ना, अगर 1 लाख भी लोन लिया तो बैंक कोई 18% ब्याज लेती है, कोई 15, कोई 10, तो कम से कम 10 तो लेती ही लेती है। आपने 1 लाख रुपया लिया, सालाना वो आपसे 10% ब्याज लेगी, यानी 1 लाख में 10,000 रुपया लेगी। बैंक ने सिर्फ 1 लाख दिया और हर साल कितना ले रही है आपसे? 10,000 ले रही है। आप देखें मेरे रब ने मुझे कितनी प्रॉपर्टी दी, रहने का मकान दिया, कारोबार दिया, चलने के लिए गाड़ियां दी। ये सारा आप जोड़ें कि यार मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, आप देखें करोड़ों रुपए बनेंगे। तो बैंक ने हमें 1 लाख दिया, 10,000 यानी 10% ले रही है। हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने, हमारे रब ने करोड़ों रुपया दिया, क्या मैं 2.5% भी नहीं दे सकता? मैं ज़कात की बात नहीं कर रहा कि ज़कात कितने, 1 करोड़ है हमारे पास तो ज़कात कितने में बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं, शुक्राने पर। क्योंकि बैंक ये नहीं कह रही साहब आपके पास ज़कात फ़र्ज़ है, आप मालिक निसाब हैं कि नहीं है, तभी 10% दो, वरना चलो आपकी ब्याज मुआफ़ हो जाएगी। ऐसा है क्या? गरीब है तब भी 10%, अमीर है तब भी 10% दो, नहीं दोगे और जो है टैक्स बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, रो रो कर दें या खुशी खुशी दें, देना है। लेकिन जब दीन की बात आती है तो 2.5% भी हमें भारी पड़ जाता है और सोचते हैं यार इस्लाम ने तो टैक्स लगा दिया। साहब वो तो 1 साल 2 साल के लिए पैसा दिया, इतना ले लिया आपसे कि आपने कान पकड़ लिया, दोबारा लोन नहीं लूँगा। और इस्लाम ने आपको इतना कुछ दिया तो 2.5% भी नहीं दे सकते। तो मेरा मशवरा यह है कि आप ज़कात वक़ात न देखें, आप पूरा टोटल देखें, अल्लाह ताला ने मुझे कितने का मालिक बनाया है उसका 2.5% निकाल दीजिए। अगर आपका 10 लाख रुपया पूरी प्रॉपर्टी बन रही है, आप 2.5% निकाल दें। 1 करोड़ बन रही है, 2.5% निकाल दें इंशाअल्लाह। अभी हमारा हदफ है कि इस आगरा में कम से कम 10 आलिम कोर्स के, 10 हाफिज़ कोर्स के जामियात यानी मदारिस कायम करने हैं। और अगले 5 साल के बाद ये मदारिस ख़त्म करके फिर इंशाल्लाह मैं जो आपको बताऊंगा आगे कि हमारा ये विज़न है, ये मकसद है कि हम इस तरह तालीम करवाएंगे तो उसमें बेहतरीन अंदाज से बच्चों की तरबियत होगी। फिर 5 साल बाद हम वो शोबा लाएंगे, वो इदारे लाएंगे कि आप भी खुश होंगे, यार अब तो कहीं जाने की हाजत नहीं है, हमारा दीन इस्लाम, हमारा बच्चा अपने स्कूल में पढ़ रहा है, अपने कॉलेज में पढ़ रहा है। और इसीलिए हम अपना दारुल मदीना भी खोला गया। बाज़ इस्लामी भाई सोचते हैं कि यार इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो, दीनी तालीम भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह
دارالمدینہ کھلا ہوا ہے، ایڈمیشن بھی جاری ہیں، اپنے بچے کا ایڈمیشن کروائیے۔ دارالمدینہ یہ انگلش میڈیم انگلش اسکول ہے، ایسا نہیں ہے نارمل، بلکہ انگلش میڈیم اسکول ہے، اس میں فیس بھی لگتی ہے، فیس بھی پے کی جاتی ہے، آپ رابطہ کریں۔ اور الحمدللہ بہترین کیا بولتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں جس کے تحت امتحان دلوایا جاتا ہے، تو وہ بھی الحمدللہ بہترین تعلیمی ادارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی